of Godhead. And if he excuses us, then all the other departments, managers, such as the demigods, must also excuse us. Prabhu, can you read? Or can you? Ajamila understood his position as a debtor, but since he had now taken shelter at the lotus feet of Mukunda, all his debts were cleared. Simply by taking shelter of Lord Narayana, who is non-different from Mukunda, Ajamila became free. Similarly, if we want to be free from all sinful reactions, we have no alternative but to surrender to Krishna. As Krishna recommends, Mameva Sharanam Vraja, simply understand unto me. We should follow Krishna's advice. Otherwise, it will be very difficult to liquidate all our debts to so many persons, especially in this age of Kali. Permanent credit. In the material world, there is danger at every step. Even for those who are pure devotees, there is the danger of falling down from the standard of purity. However, in the Srimad Bhagavatam, Narada Muni assures us, Tyaktva swadharmam charanambujam harer bhajan apokva patet tato yadi yatra kva vabadham abhud amushya kim ko varta apto bhajatam swadharmataha. The word dharma in this verse means occupational duties. A Brahmana, for example, has certain occupational duties. Similarly, a Kshatriya has his, and also do the Vaishya and Shudra. If a person gives up his occupational duties and take to Krishna consciousness, strictly following all the rules and regulations, but if we do to his immature execution of devotional service, he falls down. There is still no loss from him, whether he does a service to the Supreme Lord, although it may be a small percentage of his whole life, will remain to his credit, he does not lose it. On the other hand, one who perfectly executes his personal duties but fails to worship Krishna ultimately gains nothing. Strictly discharging one's occupational duties means living a life of piety. But suppose through these pious activities you are promoted to the heavenly kingdom. Krishna explains in the Bhagavad Gita that as soon as the effects of your pious activities are finished, you will be forced to return to this planet. Another point, if a person performs pious activities in this life, such as giving in charity, he must return to here in the next life to accept the beneficial results of his pious actions. That means he must accept another term of material life. So it is not a sound idea to hope for acquisition of the effects of pious activities. Hare Krishna Prabhu, thank you so much. हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा और धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर थैंक यू गिविंग। माता जी। तो आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रित करते हैं हर ग्रेस पवित्रा माता जी को और हिज ग्रेस गोविंदानंद प्रभु जी को दामोदर अष्टकम के लिए। हरे कृष्णा धर्म प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, यस यस यस। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री यशोदा दामोदर की जय। नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलम् गोकुले व्रजमानम्। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं असत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले
यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामिषमाद्यन्ततो धृत्यगोप्या यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्तो धृत्यगोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मं निजन्तम् करां भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् करां भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुश्वासकम्पात्रिरेखककण्ठ स्थिताग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुमुश्वासकम्पात्रिरेखककण्ठ स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् ईदृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं नाख्यपयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तम् सीताभ्येषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमतत्सं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिन्वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीहा वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिन्वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविलासं किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविलासं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजं मत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्बोजं अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविलासं मालं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविलासं मालं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदर अनन्त विष्णु प्रभु दुःख जालभिमाग्नम् देवदामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमाग्नम् दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु मेध्यक्षदृश्या कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेदृष्ट्या वेदात्मजो बद्धमित्यैव यद्वा त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतौ च वेदात्मजो बद्धमित्यैव यद्वा त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतौ च प्रेम
यथा प्रेम भक्तिं सकामे प्रयच्छ शीघ्रो मे श्री दामोदरेण नमस्ते सुदाम्ने सुरादिप्तिदाम्ने त्वदीयोदराय था विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुदाम्ने सुदाम्ने सुरादिप्तिदाम्ने त्वदीयोदराय च विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर श्री कृष्ण जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर श्री कृष्ण जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधा जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री राधा दामोदर भगवान की जय। अनुवाद जिनके सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल खिलडुल रहे हैं, जो गोकुले नामक दिव्य धाम में परम शोभ्यमान है, जो दंडी भाग फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपने विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। दूसरा, माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों के अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहित हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनके उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा, जो
ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबाते रहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेम भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चौथा, हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपकी यह वृंदावन की बाल्य गोपाल रूप मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लीलामय युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुखमंडल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंब फल के भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। छठा, हे भगवान, हे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत के उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। सातवां, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपने महान भक्त बना लिया है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम और भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। आठवां, हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर के बांधने वाले दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधानी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हरे कृष्णा। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। प्रभुपाद की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। विश्व पंचका की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा के लिए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से दामोदर अष्टकम किया और उतने अच्छे से अनुवाद भी किया। तो आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हिज ग्रेस कृष्ण रसा सिंधु कृष्ण बलराम प्रभु जी को कि प्रभु जी आए और आज के जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं उनको आमंत्रित करें और उनका परिचय दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज की नित्यम भागवत क्लास में सब भक्तों का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच है हिज ग्रेस पुरुषोत्तम प्रसाद प्रभु। आगे ऑनलाइन आ गए क्या प्रभु जी? हरे यस कृष्णा। यस यस प्रभु जी, आप देख भी तो सकते हैं, वीडियो में भी है। हम्म, इसको तो ये स्क्रीन बहुत छोटा कर रखा है इन्होंने। एक मिनट। हाँ, अभी 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 ठीक है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी जो है डिसाइपल हैं, शिष्य जो है हिज होलीनेस जयप्रकाश गोस्वामी महाराज के हैं। इन्होंने इस्कॉन जो है ज्वाइन किया था 2003 में। इनकी पहली दीक्षा अप्रैल 2009 में और इनकी अभी दूसरी दीक्षा भी हो गई है, वेरी गुड, 2022 में। तो प्रभु जी को सब लोग जानते हैं। मैं अपनी शुद्धि के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए इनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। प्रभु जी के साथ मेरा भी बहुत अच्छा कंडक्ट रहा है कि हम लोग श्रीनाथ जी के टेम्पल में ये प्रभु जी बहुत ज्यादा सेवाएं करते थे यार। कभी भी इनको जो है प्रवचन के लिए बोल दे तुरंत तैयार हो जाते थे यार। बहुत सी सेवाएं इनकी मैंने देखी है अपने आंखों से। और अभी ये फिलहाल ये कत्र के अंदर जो है वो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी की इंजीनियरिंग की हुई है, मास्टर की हुई है इंजीनियरिंग में। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से जो है स्कूल में, कॉलेज में ये सब लोग जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जाके प्रचार करना है। तो ये भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। अ, आइए हम सब मिलके जो है प्रभु जी का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है प्रभु जी, काफी दिनों के बाद मैं आपको देख रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा। आप ये रोज मिलते थे अपने श्रीनाथ जी के मंदिर में। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है इस नित्य भागवत क्लास में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Translation seva will be done by His Grace Keshav Bharati Prabhu, just for the knowledge information. Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल। प्रणाम संकीर्तन की जय, बात ग्रंथराज की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम चैतन्य ईश्वरम, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तत्ताम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासनं व्रजवधू अर्केन य कल्पित। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परः। कृष्ण। Welcome all the devotees for this Nityam Bhagavata Sevaya session. We are continuing from 11th canto, chapter 9, the first verse. हरे कृष्ण। तो हम सभी Yes. भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे नित्य भागवत सेवा के सत्र में। और आज हम अध्ययन कर रहे 11वें स्कंद के जो है 9वें अध्याय से। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavatam, Canto 11, Chapter 90, Sloka number 1. Sri Brahmana Uvacha
परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमां नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्वत् किञ्चन। श्रीब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्वत् किञ्चन। श्रीब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दुःखाय यत्तमां नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्वकिञ्चन। Translation by Stephen Gazisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada's disciples. Translation: Saintly Brahmana said, everyone considers certain things within this material world to be most dear to him. And because of attachment to such things, one eventually becomes miserable. One who understands this gives up material possessiveness and attachment and thus achieves unlimited happiness. Prabhu, would अनुवाद like शिला to प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। साधु ब्राह्मण ने कहा, भौतिक जगत में हर व्यक्ति कुछ वस्तुओं को अत्यंत प्रिय मानता है और ऐसी वस्तुओं के प्रति लगाव के कारण अनंतः वह दीनहीन बन जाता है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह भौतिक संपत्ति के स्वामित्व तथा लगाव को त्याग देता है और इस तरह असीम आनंद प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं जनहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Krishna, we welcome all the devotees once again for this Bhagavatam session, continuing from 11th canto, 9th chapter, sloka number fast. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करते हैं आज के हमारे नित्यम भागवत सेवा के सत्र में। तो हम अध्ययन कर रहे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय से श्लोक संख्या 1। So the Brahmana is explaining to King Yadu that everyone in this world, they attach something which is very dear to them, and that attachment, it becomes the cause of their miserable condition in their life. So one who understands this secret, so we should not attach to anything that is material. One who understands this truth will gradually use up all his material possessiveness and attachment to that particular object, and then that attitude will lead him to become unlimited happiness. तो यहाँ पे ब्राह्मण महाराज यदु से वार्तालाप संवाद कर रहा है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से आसक्त नहीं होता है, क्योंकि आसक्ति की वजह से उसको काफी दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति जब इनसे आसक्त हुए बिना कार्य करता है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। So this particular chapter's topic itself, detachment from all that is material. तो अध्याय का शीर्षक ही है कि निरासक्ति, जो कि जो है सारी भौतिक वस्तुओं से। And what is material? That we must understand. So let us hear from Srila Prabhupada what he is saying about material and material energy. So Prabhupada says, how Krishna's energy can be material? That is spiritual. तो So यहाँ I'll पे complete it so you can get the gist. Otherwise, I may Okay. consume more. Yeah. So Prabhupada says, so how Krishna's energy can be material?
It's actually spiritual, and gives the quote from Bhagavad Gita. Bhumirapo nalo vayu mano buddhi vacha hankaram tiyam me binna prakriti ashtada. That is separated material energy, but it is separate from Krishna. How it can be material? It is separated. That's true. That's all. Prabhupada gives explanation. Separated means as soon as it's separate from Krishna, from anything, that is material. This is called a definition for material. It's not that the vastu, anything that you feel no, there is no connection between Krishna and this matter, and then that consciousness is called material. Okay? So if you understand that, oh, this vastu, this object is there, but that is belongs to Krishna, and that is spiritual. One who have this consciousness, that is called Krishna consciousness. So you have to dovetail everything with Krishna, and it will be spiritual. Yes, Prabhu. तो ये भौतिकता क्या है या भौतिक शक्ति क्या है? तो आइए शिला प्रभुपाद के ही मुखारविंद से हम सुनते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की जो शक्ति है वो कैसे भौतिक हो सकती है। नहीं, ये तो आध्यात्मिक ही है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं इसकी पुष्टि कर दे कि जो भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, तो ये जो भी भौतिक जो तत्व है वो भगवान की ही शक्ति है, अर्थात भगवान बताते हैं ये मेरी ही शक्ति है। तो भला कैसे कृष्ण की ये शक्ति जो है भौतिक हो सकती है? क्योंकि जब ये भगवान से हम इसको अलग समझते हैं तभी ये भौतिक हो जाती है। तो भगवान से अलग समझना, जब हम भगवान से किसी वस्तु को जब हम अलग करते हैं तो वो जो चेतना है वो भौतिक चेतना कहलाती है। और जब हम भगवान के संबंधित में उसी चेतना से जब देखते हैं तो वो आध्यात्मिक चेतना या कृष्णमय चेतना कहलाती है। तो इसलिए सब आपको आपकी हर एक जो कार्य है वो आपको भगवान के लिए जो है डिडाउटेल, अर्थात उनको उसमें उस तरह से कार्य भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, तो वो आध्यात्मिक कहलाएगी। So we listen from Sri Ishopanishad. Isahawasham idam sarvam etkinchit jagat yan jagat tektena bunjita magrata kasyasviddanam. So everything animate or inanimate in this material world, it belongs to Krishna, and Krishna is the owner and he is the controller. Yeah. So anyone who understand this truth should accept things which is necessary for his life, accept as his quota. Yeah. Should not longing for the rest of the things, because we know that other things are belongs to Krishna. He knows to whom to provide it. So knowing well to whom they belong to, it belongs to Krishna. Only translation I can tell, Prabhu. Sloka I already recited. Yeah. ओके प्रभु। सो ईशोपनिषद में जो सुंदर श्लोक है ये इसकी पुष्टि करता है कि जो भी चलती हुई चल वस्तु या जो अचल वस्तु है इस संसार में वो किसके नियंत्रण में है? भगवान श्री कृष्ण के ही स्वयं के नियंत्रण में है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए और उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसके लिए अनिवार्य हो, और जो उसके लिए अनिवार्य नहीं है उसको अलग कर देना चाहिए कि ये किसी दूसरे के लिए है। और दूसरे के लिए अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण ने हर किसी के लिए जो है इसको अर्पण किया है, और इतना ही आवश्यक हमको लेना चाहिए, क्योंकि ये समझते हो कि ये किसके लिए ये किसका है, तो ये प्रभु का है। So we are not the real owners, we are not the real controllers, and we are not the real masters. Understanding this truth, including this body, mind, and senses, everything, we are not the real owner. Krishna provided this through our parents. So we must be grateful eternally to Krishna. तो हम जो है इसके प्रभु नहीं है, हम इसके स्वामी नहीं है, या हम इसके नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण करने वाले नहीं है। तो ये जो भी हमको मन शरीर जो भी प्राप्त हुआ है ये भगवान के ही द्वारा हमको माता पिता से प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमको भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। So Srila Prabhupada further explains what is meant by material and spiritual. So a devotee should have Yukta Vairagya. What is meant by Yukta Vairagya? That is explained by Srila Rupa Goswami Pad in Bhakti Rasamrita Sindhu. Anasaktasya Vishaya Netarham Upayunjataha Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchyate Panchikataya Buddhya
Harisambandhi vastuna, Harisambandhi vastuna. This is the learning. So we should see every vastu as Hari Sambandha. Hari Sambandhi vastuna, Mumukshubi Parityago, Vairagyam Falgu Katyate. That is that Hari Sambandha is not there and you reject everything. That Vairagya is Falgu Vairagya or false renunciation. Yes, bro. तो आगे शिला प्रभुपाद बताते कि युक्त वैराग्य हमें अपनाना चाहिए। तो ये युक्त वैराग्य क्या है? तो ये शिला रूप गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हैं। वो बताते हैं कि जो किसी भी वस्तुओं से जो है आसक्त नहीं है, लेकिन उसी समय वो ये सब कुछ स्वीकार करता है हरि के संबंध में, कृष्ण के संबंध में, तो वो सही रूप से अपने स्वरूप में जो है स्थित होता है, और जो भी उसके पास जो वस्तुएं है उसको वो सही रूप में उसको स्वीकार करता है। Yeah. So it is not the vastu's problem. How you utilize that vastu, that is more important. Utilize that vastu for my pleasure, for my benefit, and become karma bandhana. Use the same vastu for the pleasure of Krishna, then it becomes spiritual. And Prabhupada gives examples to the disciples that it's a microphone. I use it for my pleasure, singing so many things, talking all unnecessary, unwanted topics. It become karma bandhana, waste of time, waste of energy. Whereas the same microphone, if I use it for talking about Krishna, microphone also it become spiritual. For example, we can take the Zoom class. Zoom, it is spiritual. How? We are using it for Krishna Katha. So our mind, senses, eyes, ears, mouth, everything engrossed in service of Krishna. In this particular moment, we are spiritual. The moment we come out, we talk so many unwanted material things, immediately become material. That's all. तो वस्तुएं खराब नहीं है, वस्तुओं का किस तरह से उपयोग करते हैं वो देखने लायक है। क्योंकि वस्तुएं जब हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण बनती है, लेकिन वही वस्तुएं जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उसे अपनाते हैं तो वो आध्यात्मिक कहलाती है। और इसका हम उदाहरण देख सकते हैं जो शिला प्रभुपाद अपने शिष्य को बताते हैं माइक्रोफोन का, एक जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं उस साधन का। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यही माइक्रोफोन जब आप अपने जो है तथाकथित वार्ताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कर्म बंधन का कारण बनेगा, लेकिन वही माइक्रोफोन जब आप भगवान की सेवा के लिए या भगवान के विषयों में जब बात करेंगे तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा। और उदाहरण के तौर पे हम और एक उदाहरण देख सकते हैं जूम का। तो ये जूम भी जो प्लेटफॉर्म है इसे हम किस तरह से जो है आध्यात्मिक बना रहे हैं कृष्ण कथा के द्वारा। तो ये कर्म बंधन का कारण नहीं किंतु आध्यात्मिक कारण बनता है। So again, Prabhupada quotes from Bhagavad Gita, Sloka 9.28. Karoshi dashnashi yajjuhoshi dadashi yat tapasyasi kaunteya tat purushvamadarpanam. So why we have to do arpanam to everything to Krishna? Prabhupada explains it. So acts in Krishna consciousness under the superior direction is called Yukta Vairagya. So you may do the activity, but there should be a direction from the authority, superior direction. That is Sadhu, Shastra, and Krishna. So aligning with them, then you have to do the activity. It's not that whatever I speculate, I do, and then I try to dovetail it. That is actually not Krishna consciousness, but I try to include Krishna in my sense gratification. Yeah, so Prabhupada writes here very clearly. So one who acts in Krishna consciousness under superior direction is called Yukta Vairagya. This technical term called as Yukta Vairagya. And as long as in this material world, we have to engage in some service, some act. So that cannot be stopped. That act should be pleasing Krishna. Then the life is perfect. So Prabhupada gives here, actually situated in renunciations, activity is clear, it clears the mirror of the mind, and the actor gradually makes progress in spiritual realization. It becomes completely surrendered to the Supreme Personality of Godhead. So surrenderness will take place gradually according to the soul's will to surrender to Krishna. Therefore, at the end, becomes liberated. That is guaranteed. And this liberation is also specified. Yes, Prabhu. तो आगे शिला प्रभुपाद ये भगवत गीता से इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई जो है कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो जो है
दैवी शक्ति के अंतर्गत में होता है और इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है, और यही युक्त वैराग्य की परिभाषा है। तो जब ये द्रव्य या वस्तुएं जब हम भगवान के इसमें अपनाते हैं, तो और वो जब गुरु शास्त्र साधु शास्त्र से प्रमाणित होती है, तो तभी वो जो है वास्तविक रूप से आध्यात्मिक या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अन्यथा अगर हम हमारे मनोधर्म से या मनमाने ढंग से करेंगे, तो वो भी बंधन का ही कारण बनेगी। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में के अंतर्गत ऐसे जो अथॉरिटी है गुरु साधु शास्त्र इनके जब देख रेख में करेंगे, तो यही जो है युक्त वैराग्य कहलाएगा। So one may ask the questions, how sure that if we follow this, we'll go back to Krishna. So Krishna himself says that, Mam upashyasi. So he comes to me, he come back to Godhead. तो कोई पूछ सकता है, प्रश्न कर सकता है कि इसका क्या प्रमाण है कि हम ये पालन करते हुए भगवान के पास जाएंगे। तो तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से मुझे या मेरे धाम को प्राप्त होगा। Yeah. So again, Prabhupada explains further about this Yukta Vairagya and this particular verse. So no work should be done by any man except in relation to Krishna. It's a heavy statement, but that is called Krishna consciousness. No work should be done by any man except in relation to Krishna. This is called Krishna karma. Krishna conscious bhakta matlab, so we have to do all our activities to please Krishna. That is the goal. That's the purpose. So if you understand this, gradually we do little by little baby steps, working towards this goal, to attain this goal. Everything in my life around Krishna's active, to please Krishna, I am doing all my activities. Then that life become perfect. So Prabhupada gives a beautiful example. You may be doing the business, but all the business that you do and the profit, everything, you can offer it to Krishna. Instead of constructing a huge home for your pleasure, you may construct a big temple also. So, dovetailing all the activities for Krishna karma, that means pleasing Krishna, then life become perfect. And while doing all our activity, you should not be attached for the results. And what happens if you attach for the results? You may start thinking that I am the doer. Yeah. So Prabhupada explains, but the results should be offered to Krishna, and one should accept as prasadam the remnants of offerings to Krishna. Yes, Prabhuji. आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं युक्त वैराग्य के संबंध में कि हमें कोई भी कार्य कोई भी समय पर जो करते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और इसीलिए हमको ये काफी जो है काफी वजनदार बात है श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समय और कोई भी कार्य जब हम करते हैं वो कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बिजनेसमैन व्यक्ति या जो कोई कोई उद्योगपति जब वो कुछ कार्य करता है या अपने लिए बड़ी इमारत या बड़ा बंगला बनाता है, लेकिन बंगला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो बंगला बनाता है कृष्ण के संबंध में, कृष्ण की सेवा के हेतु, तो वो वास्तविक रूप से जो है वो पूर्ण होता है और इससे उसका जीवन जो है सफल होता है। लेकिन अगर वही अगर करते करते जो है अगर उसे अपने लिए करे, तो ये सही नहीं होगा। और इसके साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमको उसके फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फल से आसक्त हो गए तो हमको लगेगा कि मैं ही करता हूँ, मैं ही इसका नियंता हूँ। तो हमें इन फलों से आसक्त हुए बिना ये कार्य करने हैं, और जो भी फल है वो भगवान को ही अर्पण करना है। तो इस चेतना से जब हम करेंगे तो हमारा जीवन पूर्ण होगा और अंततोगत्वा सफल होगा। Yeah. So, this particular verse, this is what it informing us. So, everything in this material world, if anything is dear to you, immediately you have to dovetail that object to Krishna. There could be wife, children, home, money, earnings, whatever it could be, including your body. If you're attached, then you immediately should. This body belongs to Krishna, so this body, mind, senses, everything serve him. And miserable conditions can be transformed into unlimited happiness because you know that you don't have any attachment to that particular object. And how to do that? That is explained in further verses.
The devotees also asked me to summarize this particular chapter, to give a brief idea about it. So, that is the previous chapter, the 8th chapter, that you are the Avadut Brahmana, learned from various gurus, around 9 gurus, right? So, in this particular chapter, there are another further 7 gurus from whom learned the lessons. That lesson was explained to King Yadu. Yes, Prabhu. तो यहाँ पर जो भी है, हमारा शरीर, हमारी मन, हमारी इंद्रिया, या जो भी हमारे पास पत्नी, बच्चे, या जो भी कुछ द्रव्य है या संपत्ति है, वो हमको हमेशा कृष्ण के ही सेवा में इस्तेमाल करनी चाहिए, अन्यथा ये सही नहीं होगा। और आगे भक्तगण मुझे ये भी बता रहे थे कि पूरे इस अध्याय का आप जो है सारांश जरूर बताइएगा। तो जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि वहाँ पे कुछ 7 गुरु के बारे में चर्चा हुई थी, और यहाँ पे भी हम कुछ गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इस अध्याय से प्रारंभ होती है। So the first one, the Brahmana learned the lesson from Kurura bird. Kurura bird means the hawk. Hawk, it explained a weak hawk having the its meat. Stronger hawk trying to kill that weaker hawk and try to take the flesh from that, the meat from the weaker hawk. The weaker hawk gave up the meat, so it is survived. Similarly, a person in this material world try to occupy everything, try to lord it over. Immediately, the Maya will come and snatch away from you. So, the brilliant person, the intelligent persons will not have attachment to those material possessions, and use all the material possession in Krishna's service. So that person is becoming qualified to have unlimited happiness. So that is the lesson from this Kurura bird example. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, can you please repeat that Kurura bird, this analogy you gave? Hawk, H-A-W-K. That hawk, similar to vulture or eagle, this is another kind. So it's trying to have, grab the meat, that's its food. But one bird is very big, and another bird is very strong. So the stronger bird trying to snatch it away from the weaker bird. When weaker bird will not give that food, that prey of that meat, it will try to kill. The stronger one try to kill the weaker one. So better, weaker one, if we give up that meat, there's no fight, right? So similarly, when Maya is very stronger, Maya is very stronger. We try to capture everything from the Maya, then Maya will beat us. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे कुरूरा पक्षी के बारे में बात हो रही है। कुरूरा पक्षी ये चील या गिद्ध की तरह ही होता है। तो ये कुरूरा पक्षी जो है, एक ताकतवर कुरूरा पक्षी जो कि हमेशा अपने खाने की तलाश में होता है, जो कि वो मांस खाता है। लेकिन जब वो कुरूरा पक्षी देखता है कि दूसरा ही कमजोर कुरूर पक्षी उस मांस को लिए बैठा है, तो ये जो शक्तिशाली कुरूर पक्षी है वो उस कमजोर पक्षी से जो है मांस छीनने का प्रयास करता है। और जब ये कमजोर पक्षी वो मांस नहीं देता, तो कुरूरा शक्ति इतना प्रबल हो जाता है कि वो उसको भी मारने से कतराता नहीं है। तो यहाँ से हम उदाहरण ये देख सकते हैं कि माया भी जो है इसी तरह से जो है चीजें ग्रहण करती है। और जब हम अगर माया से युद्ध करने जाए तो जो है हमारा, या उसे छीनने जाए तो हमारा विनाश हो जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कोई चीज से आसक्त या ज्यादा उससे आकर्षित नहीं होता है। वो हमेशा सारी वस्तुएं जो है प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करता है, जो भी कुछ आता है। So when we are present in this material world, we have to learn the lessons from the, water drop on the lotus leaf. Padmapatra ivambasaha. You have to present, should not be attached. तो इसीलिए हम इस संसार में रहते हुए उस कमल के फूल की तरह होना चाहिए कि भले ही हम संसार में, लेकिन हम इससे अनासक्त हैं। Yeah. So that is the verse Krishna explains in 5:10 from Bhagavata. And another example, the second example, lesson the Brahmana learned from a foolish, lazy child. A foolish, lazy child don't have any goal, you don't have any passion to do anything. Okay? So such a person is free from all anxiety. Anxiety starts when you are attached to something.
Okay. So this Brahmana is learned another lesson from a lazy child who is foolish. Why? The child don't have any anxiety. Oh, if I live like this child, I will not have any anxiety. How? That person, how he is sleeping, but he is totally focusing on Krishna. Yeah. So when you focus on Krishna, when you're meditating on Krishna, when you serve for Krishna, you will taste the higher experience, the higher taste that person will feel, the supreme ecstasy that higher person will feel. So he is free from anxiety. So the solution for freeing from anxiety, living free from anxiety means always engaging in Krishna's service, so that the devotional service will lead to supreme ecstasy, our prema in that stage. Yes, sir. तो आगे अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि किस तरह से वो एक शिक्षा लेते हैं एक मूर्ख बच्चे से जो कि काफी आलसी होता है। और आलसी का अर्थात उसे किसी चीज की परेशानी या दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा अपने जो ऊपर वाले हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भी इस बच्चे से शिक्षा लेंगे कि हमको तो कुछ चिंता नहीं है या कुछ जो है किसी चीज पर जो है आसक्ति नहीं है, हम तो केवल हमारे प्रभु भगवान के ऊपर ही निर्भर होंगे, तो तभी हम जो है परमानंद का अनुभव कर सकेंगे। But some people they think, okay, anyway we should be, you know, free from anxiety. So we should be lazy and should not care for anything. So we can be negligence. Negligence in material attachment. Negligence in material attachment, not in spiritual activity. We do not have negligence in spiritual activities, in our sadhanas, in Guru Sadhu Shastra Vakyas instruction. We should not be negligent in that. That is very important. लेकिन ये आलस की बात जब यहाँ होती है तो हमें इसे अनदेखा नहीं करना है। अनदेखापन भौतिक वस्तुओं में ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक वस्तुओं में तो जो भी हमारी साधना है या जो भी हमारी सेवा है वो नित्य रूप से चलनी चाहिए गुरु साधु शास्त्रों के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे आलसी का इसलिए बताया गया है कि भौतिक रूप से जो है वो किसी चीज से आसक्त नहीं रहता या किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं रहता, इसीलिए उसे आलसी कहा गया है। तो यहाँ पे हमको ये बात समझने लायक है। So the first lesson from the ark, that is Kurura bird. The second one is this lazy child. The third one is the example of a young girl who is wearing a bracelet with the conch. Okay, he's having each bracelet with the conch, and when his whose relatives suddenly visited the home, the girl she tried to prepare food for the visitors, that means the relatives. So she went inside and then started what do you call that, preparing food. So the bracelets are hitting each other, it makes so much of noise. So from this instant, the lesson is when there is more than two people, two or more than two people, there is always what do you call that, the chance of misunderstanding and quarreling and then useless gossip. When there is more than two people or two or more than two, there is a lot of opportunity to get into gossip or quarreling or misunderstanding. So when people are come together, the only thing we should try to do, discuss with our spiritual progress or how to serve Krishna. Yeah. So that should be the lesson from this example. It's brother. हरे कृष्ण। तो हमने पहला उदाहरण क्रूर पक्षी का देखा, दूसरा उदाहरण ये आलसी बच्चे का देखा, और तीसरा उदाहरण हम देखेंगे कि एक नवयुवक जो है कुमारी का, जो अपने हाथों में जो है सुंदर शंख के आकार वाले जो है वो ब्रासलेट या जो चूड़ी जो है वो पहनती है। तो जब उनके घर में कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी आते हैं तो वो कुमारी लड़की जो है रसोई घर में जाके जो है कुछ खाना बनाने लगती है, कुछ भोजन बनाने लगती है। और भोजन बनाते समय क्योंकि उनके हाथ में दो ये चूड़ियाँ या कड़े जो पहने हुए थे, तो इसकी आवाज बहुत होती है। तो यहाँ से हम शिक्षा ये ले सकते हैं कि जब भी जो है दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब होते हैं
जब वो एक साथ में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये शक्यता होती है कि वो जो है प्रजल्प करेंगे या फिर इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन हमको इससे सावधान रहना चाहिए। और जब दो या दो से अधिक लोग हो तो हमें कृष्ण कथा या ऐसे आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करनी चाहिए। Yeah. The fourth example is how to focus. A person is constructing an arrow. So like that, one's goal in life is to control the mind and focus and concentrating in worshipping Lord Hari. तो अगला हम उदाहरण देखेंगे इस धनुर्धर व्यक्ति का, कि हमको भी हमारे मन के द्वारा जो है हमारा केंद्र जो है प्रभु के ऊपर नियंत्रित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए और उस तरह से जो है कार्य करना चाहिए। Yes, so Krishna also explained that in 6th chapter of Bhagavata, 15th sloka. So, Injanam eva sadatmanam yogi niyata manasaha shantim nirvana paramam matsamstam adhigacchati. Practicing constant control of the body, mind, and activities. Mystic transcendentalist is mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna, cessation of material existence. This is nothing but Yukta Vairagya. Yes. तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं अध्याय 6 के 15वें श्लोक में कि इस तरह से हमको जो है नियमित रूप से जो है इसका अभ्यास करना चाहिए, किस तरह से हम अपने शरीर मन या हमारे कार्य को जो है उसको नियंत्रित कर सके। और ये जो गूढ़ जो है आध्यात्मिक ज्ञान है, इससे हम हमारे मन को संतुलन में रख के जो है भगवान के धाम की जो है प्राप्ति कर सकते हैं। और भौतिक भौतिक जो लोक है इसको त्यागते हुए। Yeah. So, how to engage the mind? Ambarish Maharaj is explaining Savaimana Krishna Pada Ravindayo Vacham Shiva Kunta Gunana Varnane. So, by engaging all our senses in all the different 9 devotional services is possible. So, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti. So, Acharyas have given us a beautiful process that we can follow and focus our mind with Krishna gradually. Yes, Prabhu. तो हमारे मन को हम केंद्रित कैसे करें, तो अमरीश महाराज यहाँ पे बताते हैं कि हम अपने सारे मन को जो है भगवान की सेवा में लगा के केंद्रित कर सकते हैं। और यही उसका उचित ढंग बताया गया है। और ऋषि के न ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। तो उत्तम भक्ति या उच्च भक्ति वही कहलाती है जब हम हमारी इंद्रिय भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने में लगाती है। तो यही जो है वास्तविक भक्ति है या उच्चतम भक्ति है। So another example is about the great serpent. One serpent is there. So a sage or a saintly person should wander alone. He should not have any fixed residence. He should be always careful, very, very grave. He should not reveal his movements to others. He should take assistance from no one and should speak very little. That is the nature of a sadhu. If such a sadhu, seeing this great serpent, sadhu should be like this. He learned that. That was explained by Avadhuta Brahmana to King Yadu. Yes, Prabhuji. तो यहाँ पे अवधूत ब्राह्मण आगे का जो है शिक्षा दे रहे हैं इस सांप से राजा यदु को, कि वो बता Yes. रहे हैं कि जो एक संत है या साधु है उसको हमेशा अकेले ही भ्रमण करना चाहिए। उसका कोई एक ही जो है ठिकाना नहीं रहना चाहिए। और उसे हमेशा ध्यान पूर्वक या काफी गंभीर होना चाहिए। और इसके साथ ही उसे अपनी क्रिया मुद्राओं के बारे में दूसरों को पता भी नहीं चलना देना चाहिए। और उसे किसी से भी जो है ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और उसे उतना ही बोलना चाहिए जितना कि आवश्यक हो, और या फिर उससे कम बोलना चाहिए। तो ये सर्प से ये शिक्षा जो है यहाँ पे ब्राह्मण बता रहे हैं राजा यदु को। Because that sadhu is totally detached from all material activities, material engagement. So emotes will not impediment him. So और जब is the साधु इस तरह reason, से yeah.
I'll complete this, Prabhu. So that is the reason sadhu will not have any attachment to any home. Krishna says in Bhagavata, the 12th chapter, 18 to 19th verse, Aniketa sthiramatir bhaktiman me priyo naraha. So one who don't have any attachment or any care for his residence. Residence also indicate Sarira itself a resident for the soul. So one should not have even attachment for own body. Yes, Prabhu. तो यहाँ पे उस साधु को जो है आसक्ति केवल कोई स्थान या घर से ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि भगवत गीता के 18वें अध्याय में 18 और 19वें श्लोक में करते हैं कि उसे अपना जो है मन या शरीर की भी उसको ऊपर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये उस साधु या संत का स्वभाव होना चाहिए। Yeah. So that's why when we associate with such a pure devotees, there is always possibility of talking about Krishna, which is pleasing and satisfying to the ears and heart. Satam prasangam mama veera samvito pantirit karna rasayana katha joshanat asva apavarkavatmani shraddha ratir bhaktir anukramishati. So when we associate and talk associate with the saintly people or pure devotees of the Lord Krishna, then when we listen katha from them, it gives Shraddha, Ratir, Bhaktir. So the what you call unflinching faith as well as Rati and Bhakti, the devotional service and the bhava, everything will get Anukramishyati. Yes, Prabhu. तो साधुओं को फिर संग किसका करना चाहिए? साधुओं को संग भक्तों का ही संग करना चाहिए और भक्तों के संग में आके भगवान के पराक्रम की या लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए, जो कि कर्णों को हृदय को जो है काफी रस प्रदान करती है या संतुष्ट करती है। और जब हम ऐसा ज्ञान विकसित करते हैं तो हम धीरे धीरे जो है हमारे मुक्ति के पद पर जो है स्थिर होते हैं, हमारे उद्धार के पद पर स्थिर होते हैं और फिर हम सारे जो आकर्षण है उनसे मुक्त होके जो है भक्ति में स्थिर होते हैं और तभी हमारी जो है वास्तविक भक्ति जो है वो प्रारंभ होती है। So the next example, Ramana learned from the spider. So the spider, from its mouth, how it leaves the saliva and expand. Similarly, it wipes out everything again. It withdraws it back. Similarly, the Supreme Lord, who is Mahavishnu or Karnadakshai Vishnu, he exhales unlimited trillions and trillions of universes. He exhales. When he wants, he inhales and withdraw everything within him. So by seeing the verb, the Brahmana, he remembered Lord. Yes. तो अगला उदाहरण ब्राह्मण जो है मकड़ी का देते हैं। तो मकड़ी का एक स्वभाव होता है कि वो जब चाहे तब अपना जाल बना लेती है और जब चाहे तब वो अपना जाल जो है उसे जो है अपने पास खींच लेती है या उसे तोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार महाविष्णु या गर्भोदक्ष विष्णु जो है महाविष्णु या जो विष्णु है तो वो कारण कारणोदक्ष विष्णु, तो जब वो अपनी एक सांस लेते हैं जब अपनी वो एक सांस छोड़ते हैं तो उसमें अरबों खरबों जो है ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और जब वो श्वास वापस ले लेते हैं तो वो ही अरबों खरबों जो ब्रह्मांड है वो पुनः उनके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे अवधूत ब्राह्मण जब इस मकड़ी के जाल को मकड़ी या उसके उस जाल को देखते हैं तो उनको भगवान का स्मरण होता है। So the next example is the wasp. Wasp is similar to kind of bee or fly. So the living entity under the sway of affection, hatred, and fear attains in the next life the identity of that object upon which he fixes his intelligence. So in this particular lifetime, Amara Buddhi, Man, Chintan, on which object you make so much attachment, is carry forward in the next life also, like this wasp. So we should always try to, as Krishna says, Mayyeva mana adasva, Mayi buddhim niveshaya, nivashishyasi mayyeva, atavurtam na samshayaha. A devotee who engages always in mind and intelligence in Krishna and Krishna's activities, Krishna and that person lives together. There is no doubt about it. Even in this life, even in this present material existence, he can live that. Because the mind and intelligence is fixed on Krishna, in the next life, we will associate with Krishna.
So from this task, the sadhu learned that we should fix the intelligence on Krishna. That is the lesson that he learned. Hare Krishna. Prabhuji, what is the nature of this insect? The wasp, how to call it? Similar to bee, it sucks away. It sucks. So it focuses, and its intelligence is in sucking the food or whatever it wants. So we should be fixing the intelligent on Krishna. ओके, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अगला उदाहरण प्रभु जी बता रहे हैं, ये ब्राह्मण का, जो कि एक छोटे कीड़े या कीटाणु का होता है। तो जब उसे अवसर प्राप्त होता है या जब उसे भोजन प्राप्त होता है, तब उसे वो अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसको जो है चूस लेता है। ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो भी जो है हमेशा अपना ध्यान जो है भगवान के ऊपर ही केंद्रित करे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब वो अपना ध्यान मन बुद्धि जब भगवान में संलग्न करता है, तो वो और भगवान जो है एक हो जाते हैं, या वो हमेशा एक साथ होते हैं। इसी इसी हमारे जीवन में, हमारे जो तत्कालिक जीवन में जो है, उसी समय से वो भगवान हमारे साथ में आते, और जब हम अगला जीवन भी प्राप्त करते, तभी प्रभु हमारे साथ क्योंकि संलग्न होते हैं या हमारे साथ ही होते, तब हम अगले जीवन में भी प्रभु को पाते हैं। So the next example, the Brahmana learned from one's own body. Because the body is subject to birth and death, repeated birth and death. You know, as Krishna says, Dehinosminyata dehe kaumaram yavvananjara tata dehandara prapti dhirastatra mukyati. So getting this very rare opportunity of human life, the greatest gift. So this human life should be used for cultivating the knowledge and how to attain Krishna. So we should endeavor always for the achievement of the highest goal. What is the highest goal of life? Achieving Krishna Prema. So our goal of life should be only that, like focused and then fixed. Yeah. Vyavasayatmika buddhir. So we should fix our intelligence in attaining Krishna. That should be the highest goal of life. So should not be attached to the body, whereas we should use the body to attain the highest goal of life. Hare Krishna. तो अगला उदाहरण ब्राह्मण देते हैं अपने शरीर का। तो भले हमें इस शरीर से आसक्त नहीं होना है, लेकिन इस शरीर का उपयोग करना है वो परम लक्ष्य साधने के लिए, और वो परम लक्ष्य या जो परम गति है वो है कृष्ण प्रेम। और इतना ही नहीं, ये जो भौतिक शरीर है, ये जो है जन्म और मृत्यु से जो है जन्म और मृत्यु तक का ही होता है। इसीलिए एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस सारे शरीर के प्रति आसक्तियों को छोड़कर जो है, वो अपना मनुष्य जीवन पूर्णतया इस आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए लगाना चाहिए, और इससे वो जो है भगवत प्राप्ति कर सकता है। Okay. So the quick recap from this today's sessions. So the takeaway message or lesson to be learned: attachment to material things gradually and eventually becomes miserable. So what to do? You should learn, follow principles of Yukta Vairagya. तो पहली शिक्षा हमने देखी आज कि जब हम भौतिक चीजों से जब हम आसक्त होंगे, तो निश्चित रूप से हम दुखी होंगे, और इसीलिए हमको ये सीखना होगा और इसका अनुसरण करना होगा कि हम युक्त वैराग्य के सिद्धांत को कैसे पालन करें। So today's verse, the first verse, it says, one can attain unlimited happiness. Who can attain unlimited happiness? Only Atmaram. So how to become Aptaram? Is it possible to attain unlimited happiness? It's possible when we associate with pure devotees. A for association of pure devotees, B for books, learning, and taking efforts to associate with Bhagavata, Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita, and who learn that from such a devotees, we have to learn and then try to put those learnings into our day-to-day life, and then see for chanting Hare Krishna Mahamantra. So ultimately, we associate with the devotees and learn the Shastra to chant Suddha Nama, Harinam, Suddha Harinam, pure holy name. That is the purpose. So, and then D for devotional services, right from deity services to diet or honoring Prasad. So, if we mold our life around this ABCD, attaining
unlimited happiness is true. It's possible. Yes. तो यहाँ पे पहले श्लोक में बताया गया है कि हम असंख्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भला हम ये असंख्य आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो जब हम अर्थात भक्तों का संग करेंगे और उनसे कथा करेंगे तो ये संभव है। साथ ही साथ हमें नित्य प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से जो है भगवत गीता, भागवतम या ऐसे ग्रंथों का जो है उनका संग करें और उनसे शिक्षा ले और अपने जीवन में अमल करें। साथ ही साथ हमको भगवान के दिव्य नामों का जो है, महामंत्र का जो है, इसका उच्चारण करते रहना चाहिए। और डी डी अर्थात हमको भगवान की सेवा में भक्ति जो है करते रहनी चाहिए, जैसे कि उनके विग्रह की सेवा और भगवान के प्रसाद का सेवन। तो जब अपना जीवन हम इस तरह से इन ABCD के में जो है लगाएंगे तो ये हमको जो है वो परम आनंद या असंख्य आनंद की जो है अनुभूति करवाएगा। So some devotees may ask, instead of doing ABCD, still not fully happy. That means we still have unwanted attachment. So anarthas are in excess, or we have unwanted association with material world, all materialistic minded people. So that could be the reason. So we need to carefully weed out the unwanted things, which is unfavorable to Krishna consciousness. Then unlimited happiness is possible. तो काफी भक्तों का प्रश्न होता है कि हम ABCD का तो फॉलो कर रहे हैं, हम अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न नहीं है या वो आनंद की हमको प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसका उत्तर प्रभु बता रहे हैं कि निश्चित रूप से तो हमारी किसी वस्तुओं में आसक्ति है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे, या फिर किसी भौतिक लोगों में हमारा ज्यादा मेल जोल है, इस वजह से भी हम वो आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमको इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए और सारा जो प्रतिकूल वस्तु है उसको त्यागना चाहिए, जिससे कि हम जो है भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। So from this chapter and this particular verse, the root cause of all the problem is the soul identifying with this material body. So it is not sufficient that saying I'm not this body, but who am I then? And I am a spirit soul. Is that complete knowledge? Definitely not. That's the primary knowledge. The complete knowledge is I am eternal servitor of Krishna. So my service is not going to start in the morning and end in the evening. No. I am eternally servant to Krishna. So engaging all my body, senses of mind in Krishna's service will make me happy. That understanding one has to reach. Yeah. तो सारे मूल या जड़ की जो समस्या है वो ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो हमको अपने आप को शरीर ना मानते हुए हमको आत्मा मानना चाहिए। ये ज्ञान हमको विकसित करना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान विकसित करने के बाद इतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि हम आत्मा ही नहीं, भगवान के एक नित्य दास है। और एक दास की सेवा केवल सुबह प्रारंभ होती है और संध्या में खत्म होती है, ऐसा नहीं है। एक दास की जो सेवा है वो नित्य रूप से चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार हम भी जो है शाश्वत है, और इसीलिए अगर हमको भी उस आनंद का अनुभव करना है तो हमको नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होना रहेगा। So if we follow this 1, 2, 3 points in our day-to-day life, for transforming our consciousness from material to spiritual, it's guaranteed. So we will understand that Krishna is the real owner, Krishna is the real master, Krishna is the real controller and ultimate enjoyer. Then the meaning of Bhoktaram Yajnatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suratam Sarvabhutanam Nyatmamam Shanti Richati. He will attain real peace in life. And he will not undergo any kind of anxiety, problems, worries, etc. Yes. तो जो व्यक्ति ये पहले 3 जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताए हैं, इसका जब ठीक रूप से आचरण या पालन करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी चेतना भौतिक से लेके आध्यात्मिक लेके जाएगा और आनंद की अनुभूति करेगा। क्योंकि हम तो जो है वो इसके स्वयं नियंता नहीं है या करता नहीं है, लेकिन जब हम ये भोक्ताराम यज्ञ तपसाम श्लोक जब अपनाएंगे तो तभी हम वास्तविक शांति की अनुभूति कर पाएंगे और फिर दूसरी समस्या, दिक्कतें, विपत्ति इसके हम शिकार नहीं होंगे। So as Chaitanya Charitamrita says, Smartavya Satatam Vishnor Vismartavyo na Jatachit Sarve Vidya Nishedasyor Etayor Eva Kinkaraha. So always remember Krishna and never forget Krishna. How is it possible? By following ABCD, associating with the devotees, books, chanting, and having prasad and serving deities.
This will make us always remember Krishna and never forget. तो अंततोगत्वा हम हमेशा भगवान को स्मरण करें, कभी उनका विस्मरण ना हो। तो जब हम ये ABCD भक्तों का संग, ग्रंथों का अध्ययन, महामंत्र का जप और भगवान के विग्रह की सेवा और प्रसाद की सेवा जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमेशा भगवान का स्मरण कर पाएंगे और कभी उनका विस्मरण नहीं होगा। So remembering Krishna means it's not artificial remembrance or like how we remember our material education. That is not the real remembrance. It is the inclination of our heart towards Krishna. That is called remembering Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करना ये कोई बाहरी कार्य नहीं है, केवल बुद्धि का या हमारी स्मृति का, लेकिन ये कार्य है हमारे हृदय का। तो जब हमारा हृदय भगवान की ओर झुकेगा तो तब हम जो है भगवान को सदैव स्मरण रख पाएंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, भागवतम ग्रंथराज की जय, दामोदर देश भक्तवृंद की जय। यद्यत्र स्खलितं किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्र संशुद्धं किंचित गुरो एव मे नहिः। So whatever error in this class that I have spoken, it is all mistakes belongs to me. Whatever is pleased for the devotees to their mind and heart is by the mercy of Guru and Gaura. Hare, thank you very much, devotees. Padam Grantraj ki jai. हरे कृष्णा प्रभु Prabhupada जी, ki jai. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने अपना ये कीमती समय निकाल के हमको भागवत का रसपान कराया और आपने बहुत ही अच्छी सरल भाषा में जो है जिसका अनुवाद जो है केशव भारती प्रभु ने बहुत बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से, मधुर ढंग से इन्होंने किया और सब भक्तों को समझ में आ गया। और बाकी आपने लास्ट में जाके पूरा रिकेप कर दिया अपने इस प्रवचन को, तो मुझे इसका रिकेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। और टाइम भी हो गया है, तो क्वेश्चन आंसर का टाइम थोड़ा सा ले सकते हैं प्रभु जी, इफ यू परमिशन। Yeah, I don't have problem. Only devotees, those who want to go to office for them. ओके, तो मैं अब सब भक्तों से अनुरोध करूंगा कि किसी भक्त को कोई जिज्ञासा है या किसी को कोई इस विषय में प्रश्न पूछना है तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। Hare. हरे कृष्णा। एनीबॉडी, कोई भी भक्त अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपनी जिज्ञासा या प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। Hare हाँ, Krishna. विद्यागत Prabhu, प्रभु। Vidyagati Prabhu. Jai. Hare Krishna. Prabhu, the main reason for our material entanglement is attachment. That's what the sloka says. But without the attachment to family and the near and dear, how can we progress? We need to be attached to the common public, common people and friends and relatives, and also some of the belongings. So how can you come out of such thing is the big question actually, and we are struggling that. So tips which you learned, can you give us some tips and to progress in bhakti? I'll share whatever I learned. You see, almost 20 years. केशव भारती प्रभु हिंदी में बता दीजिए। Yes, Almost 20 years I'm in Gulf, so you are also most of the time in Gulf. So we go to company, go to office, we work, and we come back. We do our work. Because of us, the company also. 1 minute प्रभु, let him हिंदी translate. ना पूरा बोलेगा, बाद में प्रभु गेस्ट दिएगा. Yeah. So we work for the company. Company also earns so much, but we are not the owner of the company, right? So we work, we get reward. So if you have that, do you develop attachment for the company? Do you develop attachment for your job? Or do you become grateful to Krishna? So it depends on the personality. Okay. So everything belongs to Krishna. So you have the responsibility to serve it. But as Krishna said, should not attach to it or don't expect the result. Having attachment is not the problem. Attachment to the result and attachment to the object is the problem. So without attachment, the soul cannot exist. So attached to Krishna.
and understand that this wife, children, everything belongs to Krishna. Krishna provided this to engage them all in service of Krishna. And that is my role. Forgetting that original role and doing so many unwanted roles, then we entangle with unwanted problems. Yeah. So whatever it is, wife, children, husband, over all the possessions that Krishna provided you, believing that Krishna believed you. If I provide to Vidyagati Prabhu will engage me in my service. Krishna trusted you. How can we spoil that trust that Krishna had with us? So if you understand that, then detachment is very, very simple. Yes, हरे Prabhu. कृष्ण। तो विद्यागति प्रभु का बहुत सुंदर प्रश्न था। विद्यागति प्रभु पूछते हैं कि प्रभु जी, आपने बताया कि आसक्ति जो है ये बंधन का कारण बनती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ आभूषण होते हैं या मित्र संबंधी, पत्नी, बच्चे, ये सब होते हैं, लेकिन हमारा जीवन में हम इनसे काफी आसक्त हो जाते हैं और एक समय आता है कि इनमें से हम अनासक्त नहीं हो पाते। तो आप आपके व्यवहारिक उदाहरण से आप बताइए कि किस तरह से हम इससे बचे या कैसे निरासक्त हो। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। प्रभु जी ने बताया, अगर आप कोई, जैसे हम 40 साल से इस देशों में काम कर रहे हैं, तो हम किसी के यहाँ पे जो है नौकरी करते हैं, तो हम किसी के यहाँ पे नौकरी करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम यहाँ पे कर्ता नहीं है, नियंता नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारा कार्य करते हैं और उतना वेतन या सैलरी जो है पाते हैं, तो हम उससे आसक्त नहीं होते। ठीक इसी प्रकार हमें भी जो है प्रभु की सेवा के लिए जो है कार्य करते रहना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जीव का स्वभाव भी आसक्त होना, लेकिन हमको आसक्त किसी वस्तुओं से या फिर लोगों से नहीं होना है, हमको आसक्त होना है प्रभु से। और जब हम प्रभु से आसक्त होंगे और ये समझेंगे, जानेंगे कि प्रभु ने मुझ पर विश्वास करते हुए ये सब पत्नी, बच्चे, घर इत्यादि ये सब मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसी को जो है प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करूंगा, और इस तरह से इस्तेमाल करते हुए जो है हम निरासक्त हो पाएंगे। Yes. And one more answer. Krishna gives answer to Vidyagati Prabhu's question. This is the answer. Mai sarvani karmani sanyasya yatma chetasha nirashir nirmamo bhutva yuddhasva vigadajvaraha. So this is what Krishna taught to Arjuna, to all of us. Therefore, Arjuna, surrendering all your works, whether your housework, homework, office work, social work, any work, you have to offer it to Krishna. Full knowledge of me. Because we lack in knowledge of Krishna, we understand that we are the doer. Prakriti kriyamanani gune karvani sarvasa. So you should not have the desire for profit or loss, whatever it is. Without desire for profit, with no claims to proprietorship. Nirmamo nirasir. Nirmamo, that means I am the proprietor. And free from lethargy, then do your work. And everything becomes perfect. Thank you, Mangu Prabhu. So he pointed that. And Prabhupada writes this. This verse clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita. What is the purpose of Bhagavad Gita? Surrendering all my works to Krishna. Prabhupada writes here. This very clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita. 330 is the purpose of Bhagavad Gita. Jagati Prabhu, hope you got the answer. हरे Yes, कृष्ण Prabhu. प्रभु। Yes. तो Thanks. आपका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में भी दिया है, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दिया है। भगवत गीता के 3.3 अध्याय के 3 श्लोक में, कि आपको केवल आपका कर्म करना है, फल से बिल्कुल आसक्त नहीं होना है। और ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का सार श्लोक है, तो जिसमें हमको ना ही प्रॉफिट लॉस या हमारा नुकसान या फायदा या इन सब चीजों में हमको न आसक्त होते हुए हमको प्रभु में आसक्ति बढ़ानी है। तो इससे जो है हम सारी वस्तुओं से निरासक्त हो पाएंगे। Yeah, surrendering all our activities to Krishna, results and the activities, both with full knowledge of Krishna. That is important. तो हमारी जो क्रियाएं हैं और साथ ही साथ जो हमारा फल है, ये सब हमको कृष्ण को समर्पण करना है, तो तभी जो है हम इसका वास्तविक जो है लाभ ले पाएंगे। Yeah. Thank you. थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है इसका उत्तर दिया है।
और बहुत मतलब अच्छे तरीके से सबको समझ में आने वाला जो है ये आंसर है। और ये आसक्ति को कैसे हम जो है कम कर सकते हैं। आसक्ति खत्म नहीं हो सकती, कम हो सकती है। तो नो, आसक्ति होना चाहिए, लेकिन हाँ, विच वस्तु आसक्ति के होना पास? चाहिए। कृष्ण के हाँ पास। हाँ, कृष्ण का, कृष्ण भक्ति के पास, कृष्ण संबंध, निर्बंध कृष्ण आसक्ति को संबंधे आसक्ति को युक्त है। डाइवर्ट करना चाहिए, न कि वो हाँ खत्म करना है। हाँ, खत्म नहीं हो आपने जाएगा, क्योंकि हाँ ये आत्मा का नेचर है, खत्म नहीं हो जाएगा। इट हैव खत्म, अटैचमेंट, हाँ खत्म नहीं बट द करना, खत्म तो अटैचमेंट टू होता ही कीप नहीं है। वेयर इन मटेरियल और स्पिरिचुअल, दैट इज बिल्कुल द पॉइंट। बिल्कुल। यस प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल देते हैं। किसी बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसको खिलौने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, यस। परंतु वो आसक्ति जो है जब वो बड़ा होता है तो वो फिर उसकी रुचि फिर स्कूल में पढ़ने के लिए हो जाती है। फिर वो खिलौनों से आसक्ति नहीं रहती उसकी। फिर वो जब वो और बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपनी पत्नी में उसकी आसक्ति होती है। फिर ऐसे करके आसक्ति डाइवर्ट होती रहती है, मतलब ऊंची हो जाती है, मतलब ऐसे। आसक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, आसक्ति इसे आसक्ति। भगवान के साथ रखना, ये दैट इज हाँ इम्पोर्टेंट। हाँ। हाँ, लास्ट में ये है कि भगवान भगवान के साथ आसक्ति रखेंगे तो वो जो है वो अपने जीवन में काम आएगी। ठीक है। वो ही काम आएगी आसक्ति भगवान से ठीक रखेंगे। और आप बाकी अगर मेटेरियल से रखेंगे, भौतिक जगत से रखेंगे, तो वो हाँ, आसक्ति हमें काम नहीं आएगी हमारे जीवन में। ठीक है। वो ऐसा हो जाएगा तो क्या होएगा? व्हाट विल हैपन इफ वी हैव अटैचमेंट टू कृष्णा? देन दिस विल हैपन। तो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, यस स्याहं यस, न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। One बिल्कुल who बिल्कुल। sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is ever lost to me. सिर्फ हमारा परिवार का नहीं है, सारे दुनिया का इतना आदमी लोग है, इतना सब हमारा परिवार ऐसे देख सकते हैं। सारे जगह में भगवान को देख सकते हैं। वही कृष्णा यस, कॉन्शियसनेस है, वो वही कृष्ण कृष्ण का। भावनामृता है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे धन्यवाद। ढंग से जो है इस अरे प्रवचन को जो है हमें सुनाया। और अब हम आगे के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। अनाउंसमेंट की तरफ मैं हिज ग्रेस सेवानंद गौरदास प्रभु को जो है बुलाना चाहूंगा। हरि बोल। प्रभु जी जय आए। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम बहुत दिनों के बाद में दर्शन हुए इनके। सेवानंद प्रभु is one of प्रसाद दास our प्रभु। well wisher. हरि 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 बोल। We met last time in our रामायण यात्रा। रामायण यात्रा। डू Yes. रिमेम्बर प्रभु, आपको याद है? या रामायण यात्रा में definitely definitely. आप उसी कंपनी में हो अभी भी, कतर में? No, वही कंपनी में कतर। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको मिलकर के। व्हाट ए धन्यवाद। वंडरफुल क्लास, सो ब्यूटीफुल। और इतना अच्छी तरह से आपने इलस्ट्रेशन किया। हर प्रश्न का आपके पास भगवान के भगवत गीता से श्लोक है। इससे अच्छा मजबूत और कोई नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। नहीं हो आई एम बिल्कुल। वेरी हैप्पी दैट यू हैव बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट। हाउ इज द यात्रा गोइंग ऑन देयर प्रभु इन कतर? As usual, Prabhu. Krishna's mercy going on with it without any problem now. Because Krishna's mercy. few years before we had a problem, so that has been sorted out now. So more or less. Yes. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. प्रभु हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये कार्तिक महीने के अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम छोर पे, अंतिम वीक में हम चल रहे हैं। और भीष्म पंचक का दौर गुजर रहा है कार्तिक महीने में। कल पहला दिन था भीष्म पंचक का, एकादशी। आज द्वितीय दिन है भीष्म पंचक का। और भीष्म पंचक जो लोग करते हैं बहुत सीरियस है और बहुत सारे विधि विधान दिए गए हैं। एक ये जो भीष्म पंचक जो उपवास है ये ऑप्शनल दिया गया है। इस बात को आप सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर काम करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा है, जो दवाइयों के ऊपर, गोलियों के ऊपर चलते हैं। उनको ये सारे इतने कठिन उपवास करने का थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। अपनी जैसी अपनी स्थिति है, जैसा अपना हेल्थ है, उसको देखते हुए जितना हो सके, संभव हो सके, उतने तरीके से आप ये भीष्म पंचक का व्रत कर सकते हैं। और आज दूसरा दिन चल रहा है, तो इस हिसाब से फ्रूट्स और रूट्स से लोग फास्टिंग करते हैं जनरली, तो नो प्रॉब्लम। और बहुत कड़क फास्टिंग जो है वो मतलब गाय के पदार्थों का है और बहुत सारा है, उनके लिए थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। ये यात्रा का भी यही मतलब एडवाइस है कि दोज हु आर सीनियर्स प्लीज केयरफुल। दूसरा दामोदर आरती चल रही है बहुत जबरदस्त है। पहला वीक थोड़ा ठंडा रहा, दूसरा वीक में तेजी पकड़ी, अभी तीसरे वीक में सभी ड्यूट लोग बहुत बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी दामोदर यात्रा के अंदर, दामोदर यात्रा में बिजी है और अपने ऑफिस में भी जाना है। तो थोड़ा सा संभल करके जितना हो सके अपने से जो पॉसिबल है वो हिसाब से आप लोग फास्टिंग रखिएगा।
दूसरा, आज बीइंग अ फ्राइडे, आज शुक्रवार है, तो एवरी वीकली जो हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो ओल्ड मीना बाजार एरिया के जो हॉल के अंदर, आज भी प्रोग्राम है, फ्राइडे का प्रोग्राम वहां पर होगा। और हमारे आज के वक्ता होंगे जो हमारे एंकर रस सिंधु दास प्रभु, जो इस वक्त स्क्रीन पे हैं, वो आज के वक्ता होंगे। तो आप बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग उपस्थित रहिए और प्रभु को एनकरेज कीजिए। हरे कृष्णा। रिगार्डिंग कीर्तन रसा का जो 1, 2, 3 का प्रोग्राम था, तो सडनली कल कुछ गड़बड़ हो गया छुट्टियों के बारे में, अभी 2, 3, 4 हो गया है। तो अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, वही अपडेट है 1, 2, 3 का। कुछ अगर होगा तो आपको 1, 2 दिन के अंदर बता दिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी अपने मित्रों को, सभी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए कि ये जो वीकेंड जो आने वाला है, बहुत हेवी वीकेंड है। पूरे दुनिया के काफी अलग अलग देशों से जो कीर्तनियस है, फेमस कीर्तनियस है, वो आने वाले हैं 30-40 के करीब। तो आप सब लोग उसका लाभ उठाइएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। और रस सिंधु पर बोल दीजिए। सेवन प्रभु जी, मतलब अभी ये आज सुबह के जो मंगल आरती में जो है, एक माता जी पूछ रही थी कि जैसे हम कल का व्रत किया है, उसका पालन कैसे करेंगे अगर हमने विषम पर चेक किया हुआ है। क्योंकि कल का व्रत का आपने फास्टिंग से ही पालन किया है, तो आज भी मुझे लगता है कि उसमें चावल वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन जगन्नाथ का पालन चावल कैसे में होगा लेने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से फ्रूट्स, जो फ्रूट्स आप ले रहे हैं वो कंटिन्यू अच्छा, करो फ्रूट्स। उसको लास्ट में जाके अलग अलग पालन दिन होगा। के लिए अलग अलग दिन के लिए अलग अलग फूड का व्यवधान है, अलग अलग चीजों को छोड़ने का है। बहुत बड़ा डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी सभी ग्रुप में डाल दिया है। आप सब लोग उसको रिफर कीजिए। जहां तक है, अनाज लेने का जरूरत नहीं है आज। जो ओके लोग करते हैं ठीक है। हरे कृष्ण ओके, प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। तो अब हम आगे आगे के कार्यक्रम जो है कि प्रे की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, बोलिए माता यस जी। माता। जैसे मेरा तो एक महीने कार्तिक का व्रत चल रहा है, दिन में एक टाइम अन्न ले रही हूँ, तो आफ्टरनून में लेती हूँ, मॉर्निंग में तो नहीं लेती, फ्रूट लेती हूँ। तो अभी कल एकादशी था, तो अभी अन्न जगन्नाथ जी का राइस मैं ले सकती हूँ ना सुबह अभी, क्योंकि मैं दिन में एक बार अन्न लेती हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, माता जी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप पूरा महीना कार्तिक कर रहे हैं ना एक टाइम के लिए। हाँ तो हाँ। दैट यू कैन कंटिन्यू। यस यस, आप ओके जगन्नाथ का वो, ले सकते हैं राइस। ओके, थैंक यू। फिर अपना दोपहर तो का जो एक टाइम का खाने का है, वो नियम आप कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आगे हम अपना आगे का कार्यक्रम जो है प्रे की तरफ चलते हैं प्रभु जी। तो चैट बॉक्स में प्रे जो है, प्रतिमा कुलकर्णी माता जी की बेटी के लिए मांगा है उन्होंने प्रे, प्रांजलि के लिए। और प्रेमयी राधिका देवी ने नारायण प्रभु की हेल्थ में जो है रिकवरी हो रही है, उसके लिए प्रेम मांगा है। और हमारा जो है, जो पूर्णानंद प्रभु जी हैं, उनकी पत्नी श्याम सुंदरी के माता जी के लिए भी जो है, श्याम सुंदरी दासी माता जी के लिए भी प्रे है। पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु के लिए भी है। अ, और हरे कृष्णा राजा प्रभु। पद कल्पित प्रभु जी, और शिवानंद राज्य प्रभु जी, राजा लक्ष्मी के लिए भी। और किसी का कोई प्रे है तो बोल दीजिए प्रभु जी। In the chat, somebody, Rekha Mataji, she said, Hare Krishna, pray for my son. ओके। और हमारे बनमाली प्रभु के पिताजी, उनके भी लिए जो है। और वंदना माता जी लिखी हैं, उनके फादर के लिए प्रे मांगी है। और हमारे जो है केशव भारती प्रभु और रत्नभूष प्रभु जो है, उनके लिए भी प्रे करनी है। और परमानंद प्रभु की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी प्रे करनी है। तो और हमारी श्रीमती सुमित्रा देवी के लिए भी प्रे करनी है। तो सब भक्तों के लिए प्रे करनी है। सब भक्तों की जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए और सेहत के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। सर्व जना सुखिने भवन्तु। तो सब प्रकार से हर जीव जो है सुखी रहे और स्पिरिचुअल में आगे बढ़े। तो 3 बार हमारे कृष्ण महामंत्र करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम पुरुषोत्तम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Prabhu, once again, I take this opportunity to thank all the devotees of Damodar Desh and the Nityam Bhagavad Sevaya devotees who organized this for all the devotees, especially today translation. Keshav Bharati Prabhu, thanks a lot. यस, केशव भारती के लिए भी हम If जो you are है not in office, बहुत I can have your धन्यवाद darshan if you switch on video. Long time didn't see Keshav Bharati Prabhu. धन्यवाद देते हैं उनको, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया उन्होंने। पुरुषोत्तम प्रसाद प्रभु, Yes, Prabhu. we invite you for Damodar Desh Yatra. Sure, It is Prabhu, very sure. close in 1.5 hour journey. Please come to Right, one of the Sundays and we want to listen from you. Haribol. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Prasad Prabhu. You remember me, Purna? How are you? Oh, Purna Purushottam Prabhu, we can forget. Purna. When Purna Purushottam Prabhu is not there, no Prasad in Damodar Desh. Correct. So you are invited in Dubai for Kirtan Mela. You come, stay 3 days with us. I'll try, definitely. Thank Long you. time, to be seeing you. Yeah, thank you. Because Sharjah, we used to have Yes, a good association over there. Thank you. Right. Hare Krishna. Sure, Prabhu. I'll try. तो अब सब भक्तों की अनुमति से, पुरुषोत्तम प्रभु जी आपकी अनुमति है तो हम ये सेशन जो है कल के लिए विराम करेंगे। केशव भारती प्रभु, हमारे आपका परमिशन ट्रांसलेटर को चाहिए। देख लीजिए प्रभु, ये केशव भारती Yeah, as per Keshav request. Bharati Prabhu, thanks. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर सेवा प्रभु जी, हरे कृष्ण, वंडरफुल। तो हम कल के लिए जो है, कल तक के लिए इस सेशन को जो है विराम देते हैं। हरे कृष्णा। Krishna, Hare Krishna.